ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಜೈಶಂಕರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಭಾರತೀಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. For us, sir, the interest of the Indian consumer has and will always be the overriding priority. Where required, Indian diplomacy has supported the endeavours of our energy enterprises in this volatile situation. Honourable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the three guiding factors of our approach. One, India is in favour of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint and ensuring the safety of civilians. Two, the well-being and security of the Indian community in the region is our overriding priority. We will continue to work with governments of the region towards that end. And three, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. I am confident, sir, that the government has the full support of this august House on this matter. I thank you. Thank you very much. I would request to my all member of parliament. Now you are raising some concern through your play cards. You are raising issue of energy security. You are raising issue of energy security. तो मेरा कहना है कि अगर आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात आपने उठाई है तो माननीय अभी विदेश मंत्री जी ने एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में सदन के माध्यम से सरकार की तरफ से आश्वस्त किया है. जहां तक भारतीय लोग हैं जो आप कह रहे हैं, इस प्ले कार्ड को दिखा रहे हैं, नीचे रखिए कि जो लोग विदेश में हैं, गल्फ में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, उनको किस तरह से लाया जा रहा है, पूरा डिटेल स्टेटमेंट दिया है. या तो केसी वेणुगोपाल जी, you have not heard what he has said. Already foreign minister has issued a statement about your all subjects. Even you are not satisfied, if you may not be satisfied, you can raise this issue in business advisory committee for more discussion, for more debate. अगर आप इस विषय पे जो उठाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई ऐसे नहीं चलती. माननीय विदेश मंत्री जी ने कुछ विषय उठाया है. माननीय विदेश मंत्री जी ने अगर सारी बातों का जवाब दिया, आपको कुछ इसमें आगे है तो आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी पे इस पर चर्चा के लिए मांग कर सकते हैं. लेकिन आप सदन को बाधित कर रहे हैं. यू आर नॉट अलाउइंग दैट. माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर. चेयरमैन सर, सभापति महोदय, मुझे लगता है कि विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है. विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं. सबसे पहले तो वो स्पीकर का खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है. उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं फिर एडजॉर्नमेंट का. एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं. इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे. जब स्पीकर का खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया और जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहां उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से, व्यापक रूप से, अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है. आप लोग को सुनना नहीं. आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है. आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं. मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपको कहना चाहता हूं, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए. आप जो ये हरकत कर रहे हैं,
ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूं और फिर से आंदोलन करता हूं। जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। माननीय सदस्यगण, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि आज का जो मोशन आया है वो आपके द्वारा आया है और उसको खुद स्पीकर साहब ने स्वीकार किया और आज के एजेंडे पे है और सरकार उस पे चर्चा करने के लिए तैयार है। और आप नहीं, आखिर आपने इस बात को नहीं महसूस किया कि जो आज का एजेंडा है, आज का जो एजेंडा मिस्टर केसी वेणुगोपाल हु है हु हैज गिवन ए नोटिस, यू हैव गिवन ए नोटिस, आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट योर अनमेरिट कि किस तरह, इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। एक तरफ स्पीकर साहब ने आपकी नोटिस को स्वीकार कर लिया और ये कभी परंपरा नहीं हुई है, पहली बार हो रहा है कि जिस दिन से आपने नोटिस दिया है उन्होंने सदन की कार्रवाई में कहा कि मैं चेयर नहीं करूंगा। उन्होंने हाई मॉरल ग्राउंड पे जब तक इसका डिसीजन न हो जाए, जब तक इस पे डिस्कशन न हो जाए, तब तक वो चेयर नहीं कर रहे हैं और आप उसको चर्चा